आदमी को औरत की शक्ति का अंदाजा उस वक्त लगा लेना चाहिए जब वो पूरी बारात के साथ उसको लेने जाता है और शेरनी की तरह नारी उसके साथ अकेले ही चल पड़ती है। भारतीय राजनीति में महिलाओं का स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है। महिलाएं अब फैसला सुनने के साथ फैसला सुनाने वाली बनेंगी। 17वीं लोकसभा में 128वें संशोधन के रूप में नारी शक्ति अधिनियम बिल पास हो चुका है। इस बिल के तहत लोकसभा व राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं लोकसभा 2024 के इलेक्शन में ये लाभ नहीं मिल पाएगा। 2026 में परिसीमन व जनगणना के बाद ही महिलाओं को इस बिल का फायदा हो पाएगा। वहीं इस विषय पर हमने कुछ महिलाओं से बात की है। आइए जानते हैं नारी शक्ति अधिनियम बिल पर महिलाओं की सोच क्या है। मैं शहनवाज ऑन द वे, कैमरामैन प्रशांत के साथ। जय हिंद। Good morning everyone. I am Shahnawaz on the way for you. You know the very well. Women reservation bill has been passed to both parliamentary house. Now women will get 33% reservation in Lok Sabha election. I am in New Heights. We will meet the principal of New Heights and let us know what she think about the bill. Ma'am. I am feeling extremely proud and privileged to hear about this wonderful news about the passing of women reservation bill in the parliament and giving the women an excess of 33% reservation, which will help them to become more strong, strengthen their ideologies in the parliament, and also help the fellow women in the society to uplift their standard of living and also empower other women in our society. This has given them strong wings to fly beyond their limits so that India can be renowned in the world for a rich legacy which they have formed till now. But till now, we were having limited seats, so the things were not so much into action. But as you have heard, that women are considered to be strong pillars at home to run the family and in the society to make it move forward. But now, when they have got reservation in the parliament, it will help in nation building in a very, very good way. So for me, I am feeling extremely proud to hear about this historic moment and the news about women reservation bill in our parliament. Ma'am, another more question for you. You always teach girls and boys we will become a doctor, engineer, and you suggest the girls especially you will make a leader. See, the girls need to be encouraged more because the Indian society has progressed so much, and now we have live examples to teach from real life experiences by showing them so many sessions in the parliament, which practically I have been doing in my school also for the senior class students, especially the girls. Whenever women speakers have a debate in the parliament, I make it sure that they are taken to smart class for some session so that they can listen to those female speakers, those who have taken out steps from their home and to help in the nation building. So in that way the women feel proud, especially the girl students, because they are good speakers, they are confident, they have got good communication skills. So why can't they be leaders in the political system of a country? And then only we can see India shining and India progressing with miles and bounds. Now we got a very good opinion. Principal Vinita Dhankar of New Heights Public School. We are on the way. Let us go another way and knows the opinion to other person. मैं शहनवाज on the way for you. मैं शहनवाज एक बार फिर से एक नई जगह ऑन द वे आपके लिए। आज मैं आर कन्या महाविद्यालय प्राचार्य सुमन वर्मा जी के साथ, क्योंकि सशक्त नारी ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। अब तो राजनीति में महिलाओं के लिए जगह ही चाहिए। नारी सशक्तिकरण बिल पास हो चुका है। मैं जानना चाहूँगा कि इस विषय में उनके क्या विचार हैं।
धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर सुमन वर्मा, प्राचार्य आर्य कन्या महाविद्यालय हरदोई, ये जान के बहुत खुश हूँ कि महिला सशक्तिकरण बिल अब हमारे पास हो चुका है संसद से। इससे हमारी, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ और ये महिलाओं का, लड़कियों का कॉलेज है, और यहाँ पर हम हर अपने बच्चे को अभी तक ये शिक्षा देते थे, ये बताते थे कि बच्चों आपको अपने पैरों पर खड़े होना है, तो वो अपने बल पर होता था। और जो सरकार के नियम होते थे, जो हमारी पूरी मतलब पार्टी होती थी, गवर्निंग पार्टी होती थी, उनके नियमों के अनुसार उन बच्चों को अपने आप को सेटल करना होता था, तब अपने पैरों पे वो खड़ी हो पाती थी। अब आज के समय पे क्योंकि ये बिल पास हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जो महिलाएं हैं वो अब राजनीति के क्षेत्र में और ज़्यादा आ सकेंगी, और वो नियम बनाने की जो पॉलिसी मेकिंग का जो स्टेप है, वो सीढ़ी है, वहाँ पर अगर उस मंच पे पहुँच गई है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी बिल वहाँ से बनेगा वो महिलाओं के हित के लिए होगा। जो नियम बनेंगे वो महिलाओं के सर्कमस्टेंसेस को, जो उनकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति है, उसके आधार को देखकर बनाए जाएंगे, और तब शायद महिलाओं का उत्थान और ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानाचार्य कुर्सी का निर्वहन करने के साथ आप निरंतर क्लास में भी बच्चियों को पढ़ाती हैं, जी जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बिल के पास कि बेटा लीडर भी बन के दिखाओ? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं अपनी बच्चियों से एक बात और कहना चाहूँगी कि बच्चों, अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ गई है देश को आगे बढ़ाने की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहाँ हम 50% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है नारी, तो वहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन राजनीति में भी होना चाहिए। तो इन बच्चों को मैं मोटिवेट करूँगी, और मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि वर्तमान समय की उच्च शिक्षा मंत्री हमारे महाविद्यालय की भूतपूर्व छात्रा हैं श्रीमती रजनी तिवारी जी, तो उनका एग्जाम्पल देते हुए मैं बच्चों को और कहना चाहूँगी कि वो और ज़्यादा राजनीति की तरफ भी अपना वो बनाए, रुझान बनाए, जिससे कि जिले का और महाविद्यालय का नाम भी रोशन हो सके और देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। आपने सुना प्राचार्य महोदय ने नारी बंधन बिल पर क्या। मैम डेली छात्राओं को नई शिक्षा देती है, अब उसमें एक शिक्षा और जुड़ जाएगी कि बेटा लीडर भी बन के दिखाओ, कि लोकसभा और विधानसभाओं में हर तीसरी सीट पर अब महिला बैठी है। मैं शाहनवाज, कैमरामैन प्रशांत और शहनूर के साथ ऑन द वे। जय। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, बस मुझे मौके की तलाश। जी, मैं शाहनवाज ऑन द वे आपके लिए। इस वक्त मैं वीरांगना सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था की संस्थापिका सुहाना जैन जी के साथ में उनसे जानेंगे कि इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं को किस तरीके से लाभ मिलेगा। सुहाना जैन जी। जो महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, सर्वप्रथम तो मैं मोदी जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, उसी से प्रमाणित है कि वो महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं और महिलाओं को बढ़ावा देते हैं। हमेशा मोदी सरकार में महिलाओं को हमेशा से बढ़ावा दिया गया। ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसकी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं। 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, 15 साल का टाइम पीरियड है, और कोटे के ऊपर कोटा महिलाओं को दिया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में अगर हम कहें तो अब हर तीसरी सीट पर एक महिला होगी, और ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बात है। वहीं आपसे मैं जानना चाहेंगे कि अब तक का जो भारत में माता पिता होते हैं वो अपनी लड़की को कहते हैं, अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लेकिन अब लगता है कि ये चीज़ें तो रहेंगी, साथ में अब एक पिता अपनी बेटी से कहेगा एक अच्छा लीडर बन के भी दिखाना, क्योंकि इस आरक्षण के बाद इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, मैं कहना चाहूँगी भी गणेश चतुर्थी चल रही है, गणपति जी का आगमन हो चुका है और साथ ही साथ लक्ष्मी जी का आगमन भी हो चुका है। हमारे माननीय मोदी जी ने महिला आरक्षण के बिल को लेकर जो पहल की है, वो आधी आबादी यानी गृह लक्ष्मी को बढ़ावा देने की एक बड़ी कवायद है। इससे समाज सशक्त होगा और राजनीतिक स्वरूप और मजबूत होगा। आपको नहीं लगता थोड़ा सा लेट हो गया? अगर क्योंकि 2014 से भाजपा की सरकार है, अगर ये जल्दी पारित हो जाता है तो 2024 में इसका लाभ मिल जाता है। देखिए, 27 सालों से लंबित पड़ा है ये बिल। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस बिल को पास नहीं करा पाई।
और इस सरकार में आप देख रहे हैं लगातार कि कई ऐसी चीजें थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी कई सालों से, और उनको भी जो है सॉर्ट आउट किया गया है अच्छे तरीके से। अब इस बिल का समय आया तो ये भी बिल पास हुआ है, तो डेफिनेटली हम खुश हैं कि कम से कम आज ही सही 27 साल जब नहीं हुआ और आज हुआ, तो हम खुश हैं इस चीज को लेकर और अपने माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, सोना जी जैन जी से आपने जाना कि किस तरह ये महिलाओं को लाभ बिल दे पाएगा, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। मैं शाहनवाज खान ऑन द वे, कैमरामैन शहनूर के साथ, जय। नमस्कार, मैं शाहनवाज एक बार फिर से ऑन द वे आपके लिए। नारी शक्ति अधिनियम बिल के बारे में भाजपा महिला जिला अध्यक्ष अलका गुप्ता के साथ इस वक्त मैं जानूंगा कि इस बिल के बारे में उनका क्या कहना है। जी, सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन करना चाहूँगी। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करना चाहूँगी। उन्होंने हमारी आधी आबादी जो मातृशक्ति है उनकी चिंता करते हुए 33% जो आरक्षण बिल पास किया है उसके लिए बहुत ही वंदन और अभिनंदन। क्योंकि आज हमारे देश में अगर प्रगति की ओर हमारा राष्ट्र बढ़ रहा है, इसमें हमारी मातृशक्ति का बहुत ही बड़ा हाथ है। इस प्रतिभा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना कि प्रदेश में, राष्ट्र और देश में भी हमारी महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पे हैं और उनका अच्छे से नेतृत्व कर रही हैं। जब हमारी महिलाओं की सहभागिता आगे बढ़ेगी तो निश्चित हमारे राष्ट्र और देश की उन्नति आगे बढ़ेगी और हमारे राष्ट्र जो विश्व गुरु कहा जाता था पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इस चीज़ का मैं बहुत ही समर्थन करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की और 33% आरक्षण देने का कार्य जो किया है बहनों के लिए बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है। तो इससे हमारी बहनों की जो कार्य करने की क्षमता है वो और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी भी चिंता की जाएगी। इसलिए बहनों को भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है कि इसका खुशी जाहिर करके इस बिल का समर्थन करें और हर्षो उल्लास के साथ इस बिल को समर्थन करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब जो अपनी बेटियां स्कूल में शिक्षा तालीम ले रही हैं, उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगी कि राजनीति में उतरें या वह अपनी पुरानी परिपाटी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और विधा में जाए? मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगी, बच्चियों पे कुछ भी हो अपनी इच्छा को थोपना नहीं चाहिए, उनको स्वतंत्र रहना चाहिए, उनको खुद अपने निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चियां अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेती हैं तो उसको बहुत तन मन धन से कार्य को करती हैं। तो अगर बेटियां हमारी राजनीति में आना चाह रही तो उनका बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि शिक्षित होकर जब आप राजनीति में आओगे तो जो एक कार्य करने की क्षमता होती है वो अलग ही रहती है। राजनीति कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वैसा है, मैं तो उसे सेवा भाव से देखती हूँ कि राजनीति सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम है। और ऊंचे ऊंचे पदों पे हमारे राजनीति में बैठी हुई हैं। मेरी तो प्रेरणा है सुषमा स्वराज जी, वो हाई कोर्ट की वकील रही हैं, वो भी तो एक मातृशक्ति थी। उन्होंने एक प्रेरणा मतलब विदेश मंत्री रही, बहुत बड़ी बात रही एक मातृशक्ति के रूप में। और उन्होंने संसद में जब बोलती थी तो लोग सुनते थे कि हाँ क्या बोल रही है। तो ऐसी प्रतिभा के साथ अपने समाज से जब बहनें निकल के आएंगी, अपने परिवार का, अपने समाज का एक आईना होती है महिलाएं। हम तो चाहेंगे कि अपने जब परिवार से निकले तो अपने साथ ये विचार लेके निकले कि हमारा मान सम्मान हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार वालों की कुछ इच्छाएं हैं इस तरीके की, उस इच्छाओं और सम्मान को बरकरार रखते हुए राजनीति में कार्य करेंगी तो उनकी अलग ही प्रतिभा होगी। तो जैसे हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारे राजनीति में, जया वाधवी जी हैं, जया बच्चन जी वगैरह हैं। तो ये राजनीति में स्वच्छ सभी के साथ जब आप करोगे तो आपका अलग ही स्थान और मान सम्मान होगा। तो इस तरीके से बेटियों को राजनीति में आना चाहिए। जब अच्छे व्यक्ति आएंगे तभी हमारे देश का और समाज का विकास होगा। जी, आपने जाना भाजपा महिला अध्यक्ष जी ने क्या कहा महिला बिल के बारे में। 27 साल लग गए इस बिल को पास होने में, लेकिन निश्चित तौर पर यह बिल अब पास हो चुका है। कुछ भी हो 2026 के बाद निश्चित तौर पर
महिलाएं लोकसभा व विधानसभा की हर तीसरी सीट पर बैठी होंगी, वो नज़ारा कुछ और ही होगा। मैं शहनवाज खान, वीडियो एडिटर प्रशांत व कैमरामैन शहनूर के साथ ऑन द वे। जय हिंद।